How are you, my dear friends? How is the situation? Sab changa si? Everything is okay? I hope so that everything is okay. Chalo, let us enter into today's topic. Today we will discuss about the transport of gases in our body, okay? And we are discussing the chapter breathing and exchange of gases. Uska ek first video diya hua hai. I have already delivered you that. If you were first to watch this video, then that video's link has been given in the description, okay? And first you watch that video, then come into this. Only then your concept will be totally cleared, okay? This topic is little bit complex to understand, but this is very interesting and important from exam point of view, okay? Chalo, let us go into the chapter. You can remember, if you have watched the first video, this picture you can remember, suppose this is alveoli. This is alveoli, and through breathing procedure we was taking oxygen, okay? So oxygen is here. Now in this alveoli we have also discussed that this is actually one squamous epithelium layer, very thin layer, squamous epithelium layer, okay? Now this oxygen has to be transported to each and every cell of our body. And how it will be transported? It will be transported through blood. And in the other part also, after cellular respiration, in this tissue region, suppose this is tissue, carbon dioxide will be produced continuously, okay? So here CO2 is present, and this CO2 has to be also transported to the lungs so that we can expire it to the environment, okay? So how the exchange was occurring, we have already seen it. हम लोग देखा ये कि exchange कैसे हो रहा था. अभी देखेंगे ये transport कैसे होंगे. तो transport कैसे होंगे? Through blood. There is only one means. What is the transport medium? पहले हम लोग लिख लेते हैं इधर कि जो transport का बात कर रहे हैं हम लोग, ये transport medium, it is what? Now blood, okay? Blood is the transport medium, and in the blood we can divide the blood into two parts. One is the plasma part, and another part is RBC, okay? Among the blood corpuscles, only RBC will participate in transportation of oxygen and carbon dioxide. No other blood corpuscles will use. Only RBC will have this capacity to transport oxygen and carbon dioxide, and that is because here is one pigment, hemoglobin. Hemoglobin is one iron containing protein. We all know this. That's this hemoglobin. It has two parts. One is heme and another one is globin, okay? This heme part contains iron, okay? It contains iron. यहाँ iron होता है, and this globin, this is actually one protein. Globin, protein, one amino acid chain. So this is protein part, or we may say this is amino acid part. Okay, so these are the mediums by which oxygen and CO2 will be transported. Let us see how this happens. First, this oxygen has to come out of the alveoli, and it has to cross this membrane, this squamous epithelium membrane. This is squamous epithelium, okay? Squamous epithelium of the alveoli. It is very thin. Then it will cross this, and surrounding this alveoli, इस alveoli का चार पास में क्या है? बहुत सारा blood capillaries है. Suppose this is one blood capillary. This is the blood capillary, okay? And in this blood capillary, it is the endothelium of the blood capillary, which is also very thin. And in between them there is interstitial fluids or some basement substances, okay? So
this was our diffusion membrane. It was our diffusion membrane. This was basement membrane. This oxygen has to be first transported from the alveoli to the bloodstream, so that bloodstream can transport it to wherever it is needed, to each and every place. Okay. How this will happen? We have also studied that it will be by simple diffusion based on the pressure gradient. Okay. Why this oxygen, and in this part also the same thing will happen. Here there is also various blood capillaries. There will be also blood capillaries. This CO2 has to be again first cross this cell membrane, then it has to come in this interstitial space, in this intercellular fluid, in this fluid or in this space, then from here to here, then from here to the bloodstream. And it will be done in both the cases by simple diffusion. Why it is possible to transport this oxygen and CO2 by simple diffusion? Because this oxygen and this CO2 is highly soluble in lipid layer of the cell membranes. Okay, here it has to also cross two cell membrane, here it has to cross two cell membrane, and the cell membrane is mainly composed of lipid and proteins. So simple diffusion is occurred in those molecules which are highly soluble in lipid. So this oxygen, we can write this, that oxygen and CO2, this both molecule is highly soluble in lipid. Okay, and if you compare the solubility of CO2 and oxygen, then which will be greater? Obviously CO2. Solubility of CO2 is 20 to 25 times greater than solubility of oxygen. We know this. So as these are soluble, so there will be simple diffusion. Now let us write down some data. Okay, कुछ informations हम लोग लिख लेते हैं. ये देखो, इस तरह continuously हम लोग breathing करते हैं, इस तरह blood में ऑक्सीजन मिक्सड अप भी होता है और ऑक्सीजन हर एक पार्ट में जाता भी है. तो पहले डाटा जो हम लोगों को जानना होगा कि कितना ऑक्सीजन ब्लड कैरी करते हैं. ओके, कितना ऑक्सीजन हम लोग इस ब्रीदिंग प्रोसीड्यूर में फ्रॉम द लंग्स टू ब्लड कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, ये हम लोग पहले लिखना होगा. सपोज देयर इज वन हेल्दी पर्सन लाइक यू. ओके, यू आर वन हेल्दी पर्सन एंड यू आर इन रेस्ट. तुम कुछ भारी काम नहीं कर रहा हो. यू आर नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क, यू आर इन रेस्ट. इन रेस्ट कंडीशन, इन वन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर मिनट में लगभग ऑक्सीजन डिलीवर होता है थ्रू ब्रीदिंग थ्रू दिस प्रोसीड्यूर. हाउ मेनी अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज, लिखो इधर, पर मिनट पर हेल्दी पर्सन इन रेस्ट. अगर कुछ भारी काम करोगे तब ब्रीदिंग का रेट भी चेंज होगा और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ेगा. सपोज यू आर रनिंग और यू आर प्लेइंग or you are cycling, then the rate of breathing will be changed and this amount will be also increased. This is one ideal data. Okay, one typical data. So this is for oxygen, this is for oxygen. And here also we have to know that how much amount of CO2 is produced. CO2 is being produced continuously inside the cell, and in case of in the same condition in rest in one healthy people, CO2 का जो production that is per minute condition in rest. Okay, so this huge amount of CO2 and oxygen, this has to be transported continuously so that our body can function properly. Okay, now this oxygen and CO2 will be transported by the help of cardiovascular system through blood. Suppose this is the heart. Okay, the famous sign, this heart is broken, I have told you, and this is a left atria, this is left ventricle, this is right atria, this is right ventricle. Okay, there will be one vein
from the alveoli to the left atria. Suppose this is the vein. Okay, it will carry oxygen from this alveoli to the heart. And next, from this left ventricle, there will be arteries, systemic arteries. This systemic artery will deliver the oxygenated blood to the tissues. We have already discussed it. So in this both cases, there is oxygenated blood. Okay, so this oxygenated blood is carrying oxygen from alveoli to the tissue region, okay, by several blood capillaries. Now we have to know what is the amount of oxygen in this oxygenated blood. Okay, let us study it. In this oxygenated blood, per 100 ml oxygenated blood, the amount of oxygen is 20 ml. Okay, so amount of oxygen in this oxygenated blood, amount of oxygen in this oxygenated blood, it is 20 ml per 100 ml blood. Okay, पर डेसीलीटर हम लोग लिख सकते हैं. डेसीलीटर मीन्स 100 ml. So 100 ml oxygenated blood carries 20 ml of oxygen. Okay, and you all know that from this tissue region, systemic veins will be generated and it will reach to the right atria. Then from the right atria to right ventricle, from this right ventricle, this CO2, it will carry CO2, okay, this CO2 will be then transported to the lungs via this pulmonary artery. We have discussed this all, okay. Basically this is CO2 containing blood, okay. So we can write that this is deoxygenated blood. Deoxygenated blood. In this deoxygenated blood, how much amount of CO2 is being carried? We have to know this. कितना amount of CO2 रहता है इस deoxygenated blood में? Okay, we should know this. Deoxygenated blood में per 100 ml deoxygenated blood, the amount of CO2 is 52 ml, okay, per dl, deciliter. Dl means 100 ml. We can write the here. Deciliter means 100 ml, okay. So this is the amount. And in the previous video we have also told you that कभी-कभी क्या होता है, जो वर्ड सुनाई देता है जैसे उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जैसा होता है, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है. जैसे देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके मतलब इधर ऑक्सीजन नहीं है ऐसा क्या? नहीं, इधर भी ऑक्सीजन रहता है. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, these are venous blood actually, these are venous blood actually, and this oxygenated blood, this arterial blood, इसका नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है? इसमें भी रहता है. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी हम देखेंगे इस दोनों जगह उल्टा साइड का क्या बात है. देखो इधर ऑक्सीजन आ रहा था 20 ml पर डेसीलीटर, इधर भी ऑक्सीजन रहेंगे. ऐसा नहीं है कि 20 ml जितना आ रहा है सब ये टिश्यू में डिलीवर कर देगा. इट इज नॉट, ओके. ये 20 ml was the amount in this oxygenated blood. In this deoxygenated blood, what will be the amount of oxygen? Let us see it. In this, it is for CO2, 52 ml for CO2. O2 का अमाउंट इधर जितना है, that is 15 ml per deciliter. So if I ask you that how much amount of oxygen is delivered to the tissues by 100 ml of oxygenated blood, it is just 20 minus 15, 5 ml, okay. So let us also write down that, where we have to write here. So 5 ml of oxygen is delivered. चलो इन लोगों को हम लोग इरेज कर देते हैं. 5 ml of oxygen is delivered to
tissues by 100 ml, ये 1 deciliter, 100 ml oxygenated blood. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो देखो इधर कार्बन डाइऑक्साइड 52 ml, एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. ऐसा नहीं है जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये ले जा रहा है पूरा सब एल्वियोलाई को दे रहा है. दिस इज नॉट. इन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आल्सो देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इंटरेस्टिंगली दैट इज मोर देन ऑक्सीजन. Okay, what is the amount? 20 ml per deciliter of oxygen. But if you consider the amount of carbon dioxide, it is interestingly higher than the amount of oxygen, and it is for carbon dioxide it is 48 ml per deciliter. इसका नाम है oxygenated blood, लेकिन इसमें देखो amount of carbon dioxide oxygen से ज्यादा है. Okay, this is one interesting point. Oxygen is being produced continuously inside our body. So if I ask you what is the amount of carbon dioxide which was delivered, here carbon dioxide जाएगा to the lungs by this deoxygenated blood, we can write it is just 52 minus 48 means 4 ml. 4 ml of CO2 is delivered to the alveoli or to the lungs, we can say by 100 ml of deoxygenated blood. Okay, so these are some points we have to remember. Now let us see how this oxygen and carbon dioxide is transported through this blood. I have already told you that blood has two portions, one is plasma and one is RBC, or RBC is hemoglobin. Okay, so we are writing some data for oxygen. Okay, we are considering the total amount of oxygen as 100%. Among the 100% oxygen, 97%, okay, 97% is transported by RBC. RBC means hemoglobin. So if oxygen and hemoglobin binds, then it will be oxyhemoglobin. Okay, oxyhemoglobin. So 97% of the oxygen will be transported as oxyhemoglobin, okay, by the RBCs. Another one point we have to remember, this hemoglobin has two parts. One is the heme part, another one is globin part. Okay, this oxygen binds with this heme part. In this iron part, here is iron. In this ferrous part, oxygen binds with this part. Okay, oxygen binds with this heme part, but carbon dioxide will bind with this globin part. So we will discuss that now. Here 97% has been transported by RBC as oxyhemoglobin, and the rest 3% will be obviously by plasma. And in plasma, oxygen will be dissolved simply, and it will be transported as dissolved state. Okay, 3% as dissolved state in plasma. So these are the two means by which oxygen will be transported. Okay, in case of carbon dioxide का क्या होगा? देखो, here is also two way, one is by RBC, another one is by plasma. Okay, but here 97% of oxygen was being carried out by RBC, but in case of carbon dioxide it will be only 23%. Okay, it will be only 23%. 23% of carbon dioxide by RBC, and the molecule will be hemoglobin plus CO2. It will be, ये जो molecule है देखो, hemoglobin का दोनों part we have already discussed. One is heme and another one is globin. This CO2 don't bind with this heme part. Instead of that, it binds with this globin part. So globin part means it is amino acid.
Okay, so it binds with the amino part. That's why the name of this molecule will be carbaminohemoglobin. Here it was oxyhemoglobin. Okay, it will be carbaminohemoglobin. What will be its name? It will be carbaminohemoglobin. Okay, so one point is clear, that the oxygen will bind in the heme part and the carbon dioxide will bind in the amino acid part. That means the globin part. Okay, it is clear. It is only 23%. 3% of oxygen was transported by plasma, but here it is 7%. 7% will be transported as dissolved state in plasma. So how many percentage it is? If we combine these two, it is only 30%. Rest 70% of the carbon dioxide. Rest 70% of the carbon dioxide will be transported as rest 70%. Okay, 70% is rest, and these will be transported as bicarbonate ion. Bicarbonate ion. Okay, HCO3 minus in this ion, and this ion, this bicarbonate, this will be produced inside RBC, but this will be transported through plasma. Remember it. ये bicarbonate ion जो है, इसका जो प्रोडक्शन वो कहाँ होगा? प्रोडक्शन होगा विद इन RBC, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट होगा विथ प्लाज्मा. Okay, let us see the detailed procedure how this happens. देखो ये procedure how oxygen and CO2 is being transported by blood, इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत सारे रिएक्शंस है इसके अंदर. इसको हम समझने के लिए कहानी सुनाएंगे तुमको. ओके, गौर से सुनोगे मेरा कहानी. ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा बहुत रोमांटिक भी है. ये कहानी तुम जैसे एज का बच्चों का नहीं होता है, लेकिन जो बड़ा है उन लोगों का होता है. किसी ना किसी का होगा ही होगा ये कहानी. ठीक है, ये कहानी एक फिल्म के तरह होता है, एक ड्रामा के तरह होता है. इस कहानी का हीरो हम लोग बना रहा है हीमोग्लोबिन को. ओके, हु इज द हीरो? हीमोग्लोबिन. बिकॉज बेसिकली वी नो दैट हीमोग्लोबिन plays the maximum role in transporting oxygen and CO2. So hemoglobin is the hero here. Okay, इस हीरो का, हीमोग्लोबिन का देखो, इसके साथ इस कहानी में हमारा बहुत सारे हीरोइंस है, बहुत सारे हीरोइंस है हीमोग्लोबिन के पास. क्योंकि हीमोग्लोबिन देखो कभी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कभी ऑक्सीजन को साथ देगा, तो कभी CO2 का साथ देगा. ओके, अगर ऑक्सीजन CO2 छोड़ के इन द एनवायरनमेंट कुछ दूसरा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको भी साथ देगा कभी कभी. ओके, नाइट्रोजन का साथ भी कभी कभी देता है ये. लेकिन इसका जो एफिनिटी, हर एक के लिए इसका एफिनिटी, एफेक्शन सेम नहीं है. हम तुमको बोले थे. जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि तुमको ही बोल रहे हैं हम कि सपोज तुम्हारा कोई ड्रीम पर्सन है, ड्रीम पर्सन. सपोज यू आर फैन ऑफ someone, any celebrity. ओके, जिसको तुम कभी सच में देखा नहीं होगा शायद, लेकिन उसका नाम बहुत सुना है, उसका बहुत बड़ा फैन है तुम. ओके, इतना बड़ा फैन है, लेकिन तुमको पता है कि वो मिलता नहीं है. That is not available. Suppose you were with an affection with one actress or with one actor. Okay, you were very much impressed with him or her. Then he is your dream person. Okay, he may be a female or male based on your gender. वो ड्रीम पर्सन के लिए तुम्हारा इतना अफेक्शन है कि तुम हर जगह उसका तस्वीरें रख देते हो, अपना मोबाइल में उसका ये वो करते हो. लेकिन बुरा है, फिर भी ये जनरल पब्लिक्स करता है. ओके, ये करना नहीं चाहिए, फिर भी ये करता है, हो जाते ही ये, समझा. तो इस हीमोग्लोबिन का जो ड्रीम पर्सन है, अच्छा फॉर एग्जांपल माय डियर गर्ल्स, डोंट माइंड प्लीज, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये हीमोग्लोबिन को एक मेल के तरह डिपिक्ट कर रहे हैं और बाद बाकी जो गैसेस है
उस गैसेस को हम फीमेल के तरह डिपिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन का जो ड्रीम गर्ल है, वो एक एक्ट्रेस है, वो जनरली मिलता नहीं है, वो हीमोग्लोबिन को भी पता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, ये कॉमन पब्लिक है। सबसे ज्यादा अफेक्शन हीमोग्लोबिन का जिसके तरफ होता है, जिसको लेकर ये हर वक्त, ठीक है, हर ससों में जिसको याद करता है, जिसको लेकर ये सपना बुनते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। वो ड्रीम गर्ल है फॉर हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या जनरली वी इनहेल? नो, इट इज इन हेल्दी एनवायरनमेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट, जनरली इट इज नॉट प्रेजेंट। और देखो हीमोग्लोबिन जैसा आजकल का जमाना में चलता है ना, क्या होता है कि आजकल का ज़माना में क्या है, हमारा जो मेल और फीमेल के अंदर उतना डिफरेंस नहीं है, हम लोग एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, कांच आ जाते हैं, तो हमारा माइंड में कहीं ना कहीं बस जाते हैं। तो तुम अगर किसी ने बोलेगा कि भाई सर मेरे माइंड में कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम मेरे बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा माइंड में कोई है, आपको भी पूछता है कि is there someone in your mind? If you say no sir, no one, I am fresh and fine, then I will tell you that please consult with doctor. You may have some problems inside your body, okay, some physical problems. There must be someone in this age in your mind, okay, जिसको तुम बहुत चाहते हो, जिसको लेकर ख्वाब भी देखते हो, कुछ भी ऐसा, okay, you can understand the sense. इस तरह जो प्यार का एक रिलेशन हीमोग्लोबिन के साथ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। ओके, तो CO इसका ड्रीम गर्ल है, लेकिन हीमोग्लोबिन को पता है कि CO इज नॉट अवेलेबल। CO सिर्फ हीमोग्लोबिन का ड्रीम गर्ल नहीं है, वो बहुत लोगों का ड्रीम गर्ल हो सकते, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, समझा? ये CO2 है। और देखो हम हीमोग्लोबिन को क्या बोला कि ये एक नॉर्मल मेल है। तो अगर तुम एक मेल हो, एक फीमेल के तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन नॉर्मल है। अगर तुम फीमेल हो तो एक मेल के तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन नॉर्मल है। अगर तुम बोलो नहीं सर मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर भी मेरा सजेशन वही रहेगा कि तुम कंसल्ट करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा बॉडी में, समझा? तो ये अफेक्शन नॉर्मल है। ऐसा ही एक नॉर्मल लेडी है, वो है ऑक्सीजन। ओके, ये नॉर्मल है, इसके साथ इसका उतना चक्कर नहीं चलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक बहुत ही अच्छा लड़की है, ये एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इसके साथ अफेयर किसका चल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, ऑक्सीजन के साथ कोई अफेयर नहीं, नॉर्मल। अगर हो सकता है तो इन दोनों का अरेंज मैरिज हो सकता है, लेकिन लव मैरिज जो बोलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही हो सकता है, क्योंकि लव उन दोनों के बीच में है। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स को, सपोज यू आर ए मेल, कुछ लड़की ऐसा होता है कि जिसको देखने में तुम्हारा दिमाग पूरा जल जाता है, ऐसा होता है ना? लड़की के बारे में भी सेम है, कुछ लड़का ऐसा है जिसको देखने के लिए उसके साथ जीवन बिता है, क्या उसको देखने के बाद दिमाग जल जाता है, मन था मारे एक थप्पड़, ऐसा लगता है ना कुछ पर्सन को देखकर। ऐसा एक पर्सन हीमोग्लोबिन के लिए है, जिसके लिए उसका अफेक्शन नॉर्मल भी नहीं है, उससे भी कम, ठीक है? वो है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है। तो ये डाटा हम लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन का जो अफेक्शन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इसको अगर हाफ नंबर दिया जाए टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट विल बी 1, क्योंकि ये नॉर्मल है। टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 20 to 25। समझ सकते हो तुम कि एक नॉर्मल लड़की है, उसके साथ जो मोहब्बत, और एक तुम्हारा जो क्या है वो पार्टनर है, उसके साथ जो रिलेशन, वो कितना ज़्यादा हो सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के तौर पे तुम एक लड़का और लड़की को जिस तरह ख्याल रखते हो, जिस तरह उसके लिए सोचते हो, तुम्हारा जो जिसके साथ सेटल्ड है उसका ख्याल तुम कितना रखते हो, लगभग 20 से 25 गुना तो हो ही जाएगा। हीमोग्लोबिन भी ऐसा ही है। तो ये हीमोग्लोबिन, इसके तरफ हीमोग्लोबिन का CO2 के तरह अफेक्शन लगभग 20 to 25 टाइम्स देन ऑक्सीजन होगा। एंड द मैक्सिमम अफेक्शन, जिसका नाम तो ये सुना है, शायद कभी देखा नहीं है, फिर भी उसका तस्वीर इधर उधर, तस्वीर मीन्स पिक्चर, इधर उधर रख देते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, समझा? इसके तरफ इसका अट्रैक्शन लगभग 200 गुना ज्यादा है। तो अभी समझो हो क्या होगा।
ये हीमोग्लोबिन क्या चाहता है, इसका ड्रीम क्या है, किसके साथ ज्वाइन होना, किसके साथ ज्वाइन होना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ही रेयर होता है, फिर भी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, उसके साथ ज्वाइनिंग करने का चांसेस मिल गया, तो सोचो पूरा दुनिया भुला देगा। एक गाना भी है शायद, अगर तुम मिल जाए तो, क्या बच्चों, क्या है गाना, अगर तुम मिल जाए तो, जमाना छोड़ देंगे। हाँ, जमाना छोड़ देंगे हम, ये गाना भी है एक। ठीक है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो हीमोग्लोबिन सब कुछ भूल जाएगा, समझा ना। ऑक्सीजन को तो करेगा ही नहीं क्योंकि वो नॉर्मल है, CO2 को भी भूल जाएगा। तब हमारा बॉडी क्या होगा बाबू, पूरा डेड हो जाएगा। कोई ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा हीमोग्लोबिन। ओके, और वो जो अफेक्शन होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर इट। हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड का इंटीग्रेशन होगा, ये होगा हिमपट में, जैसे ऑक्सीजन का हो रहा था, समझा। और इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसा होता ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ था, अमाइनो हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स तैयार होगा HbCO, इसका नाम होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, सो ये कहानी को थोड़ा सा माइंड में रखो। इस कहानी को माइंड में रख के हम एक ड्रामा चलाते हैं। वो ड्रामा अगर समझ में आ गया तुमको बाबू, तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, हम लोगों को ये भी पता है कि वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों साइड में होता है, एक एल्वियोलर साइड में और एक टिश्यू साइड में। चलो हम दोनों साइड्स लिख लेते हैं। सपोज ये एल्वियोलर साइड है, ये एल्वियोलर साइड, इस जगह को हम एल्वियोलाई समझते हैं, और ये जो साइड है ये टिश्यू साइड। ओके, दिस इज टिश्यू, इसको हम डिलीट कर देते हैं। समझो ये टिश्यू साइड है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर ये एल्वियोलाई है तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। ओके, ये हम लोगों को पता है कि इधर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा। और अगर ये टिश्यू रीजन है तो दैट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ये हम लोगों को पता है। चलो, इधर का ब्लड का अंदर का क्या होगा वो लिखते हैं। समझो ये ब्लड वेसल्स, कोई एक ब्लड कैपिलरी है, चलो ये लिखते हैं इस तरह। इसके अंदर ये सोचो कि दिस इज वन RBC। ओके, समझ लो कि दिस इज RBC एंड दिस इज प्लाज्मा। ओके, सो ये RBC है, दिस इज प्लाज्मा, एंड ये है RBC। ओके, तो RBC में नॉर्मली हीमोग्लोबिन रहता है, जैसा है ऐसा हीमोग्लोबिन इधर है। तो हम नॉर्मली क्या चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करे, हम चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे, क्योंकि हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का जरूरत होता है, समझा। ऐसा कभी कभी होता है ना कि तुम्हारा अफेक्शन किसी और तरह है, लेकिन तुम्हारे जो फैमिली वाले हैं और तुम्हारा जो सोसाइटी है वो चाहते हैं नहीं उसके साथ नहीं, उसके साथ होना चाहिए। ऐसा ही हमारा बॉडी का जो डिमांड है वो डिमांड है ऑक्सीजन। हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को उतना पसंद नहीं करते, समझा। तो ये एल्वियोलर रीजन पे अगर हीमोग्लोबिन है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं है इधर अगर एल्वियोलाई साइड में हीमोग्लोबिन है तो क्या होगा, नॉर्मली जैसा हम लोग पिछले डिस्कस किया था, इधर भी ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा बहुत सारा प्लाज्मा में। ओके, और बहुत सारा ये सब जगह ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि एज ऑक्सीजन इज सल्यूबल, ऑक्सीजन एंड CO2 बोथ आर सल्यूबल इन मेम्ब्रेन, सो किसी जगह ये जा सकते हैं। इधर भी है ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो ये घर वाले क्या कर दिया, एल्वियोलाई वाले ये तैयार कर दिया कि अगर रिश्ता जोड़ना है तो ऑक्सीजन के साथ ही जोड़ना है। किसको मजबूर कर रही है, हीमोग्लोबिन को मजबूर कर रहे हैं। और देखो इधर हीमोग्लोबिन मानने के लिए मजबूर हो भी जाएगा, क्योंकि इधर कोई CO2 है नहीं, समझा। तो ये फैमिली वालों का प्रेशर से ये एल्वियोलर साइड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा है, 104। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के वजह से क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में राजी हो जाएगा। सोचो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड कर लिया और HbO2 तैयार कर लिया। ये हुआ हीमोग्लोबिन का साइड। इस बार ऑक्सीजन के बारे में सोचो तो ऑक्सीजन एक सिंपल, बहुत ही जेनरस, ऑनेस्ट, एकदम पूरी जैसा लड़की है। उसको लेकिन पता है, क्या पता है कि ये हीमोग्लोबिन ना, जिसके साथ हम अभी ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन का असली चक्कर एक्चुअली चल रहा है CO2 के साथ। उसको ये पता है कि ये ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन है, इसका दिल लेकिन CO2 के तरफ मेरे से लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा होता है। तो हम ये क्वेश्चन लड़की वालों को पूछना चाहेंगे, डियर गर्ल्स को पूछना चाहेंगे, अगर ऐसा न्यूज तुमको मिले क्या करते? नॉर्मली सोसाइटी का प्रेशर से, घर का प्रेशर से क्या होता है, लड़की वाले मान जाते हैं। ऐसा ही होता है नॉर्मली। और ये ऑक्सीजन में से 97% ऑक्सीजन, ये जानने के बाद भी कि हीमोग्लोबिन का माइंड का अफेक्शन CO2 के तरफ है, CO2 के साथ रिश्ता जुड़ने में राजी हो गया। तो बस मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, HbO2 फॉर्मेशन हो गया। लेकिन कुछ लड़की ऐसा भी होता है जिसका जीत है, क्या जीत है कि देखो हम पूरा फ्रेश है, कि देखो हम पूरा फ्रेश है, हम इस हीमोग्लोबिन से क्यों शादी करें, जिसका माइंड मेरे तरफ है ही नहीं, दूसरे की तरफ है। घर वाले उसको समझाने का कोशिश भी कर रहा है कि देखो ये बचपना का बात है, ठीक हो जाएगा, सब सिंपल हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। लेकिन वो ऑक्सीजन, कुछ परसेंटेज अब ऑक्सीजन एकदम डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम ये सेकंड हैंड, सेकंड हार्टेड हीमोग्लोबिन के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। घर वाले बोला नहीं, तुमको जोड़ना ही है, जोड़ना ही है, जोड़ना ही है। तब क्या होगा बोलो? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कुछ लड़की ऐसा भी होता है जो बोलेगा कि नहीं भाई, हम पानी में कूद के मर जाएंगे फिर भी हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा भी कुछ ऑक्सीजन, क्या ये जो ऑक्सीजन देखो 3% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं गया, बल्कि वो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। बोला हम हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जाएंगे, समझा? तो 3%, ये होगा 97% ऑक्सीजन के साथ, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा 3%। हम लोगों को पता है। तो इधर ये कहानी हो गया। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस एल्वियोलर रीजन में, बहुत दिन है, ये लोग ससुराल में होता है ना, तो हीमोग्लोबिन का ये ससुराल है, ठीक है, एल्वियोलर रीजन। तो ऐसा कर करके एक दिन ये लोग घूम रहा है। देखो हमारा ये जो अर्थ है ये गोल है, दिस इज राउंड, तो एक दिन ना एक दिन तो CO2 के साथ मुलाकात होगा ही होगा, समझा? तो ये हमारा ऑक्सीजन का बात हुआ हीमोग्लोबिन के साथ एल्वियोलर साइड में। इस बार चलो इसका काउंटर पार्ट का बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में है कहां? टिश्यू रीजन पे है। चलो इधर भी हम लोग इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सपोज इट इज वन ब्लड वेसल, ओके। इसके अंदर ये जो RBC, ये RBC है, ये प्लाज्मा भी है, इधर कौन है? CO2। और देखो आजकल का जमाने में न्यूज रीच करने में थोड़ा टाइम लगता है। CO2 को भी पता चल गया कि हीमोग्लोबिन जो इसको इतना वादा किया था वो आज उसको छोड़ के ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया। तो देखो जनरली क्या होता है, आजकल का जमाना में CO2 भी वेट नहीं करेगा, उतना करना भी नहीं चाहिए, समझा? यहां क्या करेगा, CO2 के पास ये खबर पहुंचने के साथ ही साथ CO2 भी वेट नहीं करता है। CO2 भी इधर दूसरे के साथ कुछ कर लेते हैं। CO2 वाटर के साथ बाइंड करते हैं। ये पूरा अरेंज मैरिज है, समझा ना? इधर कोई एफिक्शन नहीं था। और इस जो मैरिज है ये एक सिंपल अरेंज मैरिज है। तुमको पता है मैट्रिमोनियल जो मॉडरेटर होता है,
जिसको हिंदी में क्या बोलता है हमको पता नहीं, लेकिन हमारा बांग्ला में बोलता है घोटोक। ओके, इस शादी में एक घोटोक, एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, एक एंजाइम का यूज होगा, जो एंजाइम इस CO2 को चाहेगी कि भाई छोड़ो वो सब कहानी भूल जाओ, H2 के साथ घर बसा लो। पर H2 उसको उतना कोई परवाह नहीं है कि CO2 का दिल किधर है और उसका ये किधर है, उसका कोई परवाह नहीं। तो इधर ये काम जो कराया, समझा, ये काम जो कराया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्यों इसका ऐसा नाम क्या है? क्योंकि ये CO2 और H2O दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3। ओके, ये ऐसा बनाएगा। तुरंत क्या होगा, ये जो H2CO3 ये ऐसा नहीं रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके एक बाइकार्बोनेट आयन और एक प्रोटॉन H+ आयन में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी देखो ये CO2 क्या है? CO2 का कोई आइडेंटिटी अभी नहीं है, अभी CO2 नहीं है, CO2 अभी किसी का माँ है, ये देखो इसका माँ है ये CO2, समझा? तो इस तरह का सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड कर लिया। लेकिन सब ऐसा नहीं होता है, सब लड़की लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा हुआ 70%। कितना? 70% लोग ऐसा कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और बाकी 23% का हालत बहुत ही खराब है। वो 23% क्या कर लिया पता है? 23% वो अभी भी इंतजार में है कि ठीक है हीमोग्लोबिन हमसे बिट्रे किया, लेकिन हम बिट्रे नहीं करेंगे, हम मेरा वादा में खड़ा रहेंगे। हम अगर ये रिश्ता जोड़ेंगे किसी दिन तो हीमोग्लोबिन के साथ ही जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। वो जिस हालत में, जब में, जिस वक्त में मेरे पास आएगा उस वक्त के लिए हम इंतजार करेंगे। ऐसा भी कुछ होता है ना। ये लड़की का परसेंटेज ज्यादा होता है, समझो ना, इसलिए लड़की को थैंक यू बोलना चाहेंगे हम लोग। इस तरह हीमोग्लोबिन के लिए वेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। 23% कार्बन डाइऑक्साइड इज वेटिंग। 23% carbon dioxide is waiting for hemoglobin to come and take her. Okay? और बाद बाकी जो 7% है वो जो काम किया वो कभी करना नहीं चाहिए था। वो लोग ये खबर सुन के 7% इस प्लाज्मा में डूब के मर गया, डिजॉल्व हो गया, समझा? इधर कार्बन डाइऑक्साइड 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया इधर प्लाज्मा में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हालत है उधर। चलो अभी इस हीमोग्लोबिन को मूव कराते, ये मूव करते करते घूमते घूमते ये हीमोग्लोबिन, ये जो पूरा सिस्टम प्लाज्मा भी फ्लो होगा, आरबीसी भी फ्लो होगा, समझा? ये सिस्टम अभी यहां आएगा। ओके, ये सिस्टम वहां आएगा और ये सिस्टम यहां भी आएगा, दोनों साइड ही होगा। ओके, तो इस सिस्टम को हम लोग यहां लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। इस सिस्टम को वहां लेकर चलते हैं। ये जब यहां जाएगा, ओके, क्या होगा? इधर देखो 3% ऑक्सीजन इज इन द डिजॉल्व स्टेट। यहां जो ऑक्सीजन यहां आ रहे हैं, इधर भी आ जाएगा ये ऑक्सीजन इधर। तो जो ऑक्सीजन आया था वो ऑक्सीजन अभी टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगा, चला जाएगा। ये जो HbO2 आया था इधर, क्या आया था ना? HbO2 आया था। जब टिश्यू रीजन पे आया तब हीमोग्लोबिन को खुशबू मिला, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये टिश्यू रीजन में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मुलाकात हुआ था, उसके साथ खुशबू आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ये अभी आ रहा है किसके साथ? अकेला थोड़ी आ सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखो मेरा एक इंपॉर्टेंट काम है। ऑक्सीजन वो सब भूल गया एक्चुअली कि ये हीमोग्लोबिन का क्या था ना था। वो उसको एक कहानी सुनाते हैं कि देखो मेरा एक इंपॉर्टेंट काम है, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा मेरा साथ छोड़ो, बोल के इसको, ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं। बोलो तुम एक काम करो, यहाँ डिफ्यूज करके ये जो टिश्यू रीजन्स है, इस टिश्यू रीजन में जाके बैठो, हम आते हैं, आई एम कमिंग। ऐसा बोल के वो ऑक्सीजन को टिश्यू रीजन में डिफ्यूज कर दिया, समझा? फिर क्या हुआ देखो, अब ये हीमोग्लोबिन फ्री हो गया।
हीमोग्लोबिन फ्री होके देखो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। पहले तो वो थोड़ा देर रोएगा, देखो हीमोग्लोबिन हम इधर एक का बात नहीं कर रहे, पूरा हीमोग्लोबिन का सिस्टम्स का बात कर रहे हैं। थोड़ा रोएगा इस 7% के लिए, जो लोग मर गया है वो मर गया तो गया, क्या करेगा, और थोड़ा रोने के बाद इसको देखेगा CO2 जो अभी भी वेट कर रहे हैं, तुरंत ये हीमोग्लोबिन उसको जाएगा और क्या करेगा। वो सीन तो तुम सब लोगों को पता है, शायद किसी लोगों का प्रैक्टिकल भी करने का एक्सपीरियंस होगा, समझा। ये हीमोग्लोबिन तुरंत इसके पास जाते हैं और HbCO2 बना लेते हैं, कितना 23%। सब हीमोग्लोबिन तो नहीं लाएगा इधर, बहुत सारे हीमोग्लोबिन बचेगा क्योंकि मात्र 23% यूज हुआ। बाद बाकी हीमोग्लोबिन देखो, ये CO2 को देखेगा, देख इतना गुस्सा हो जाएगा इसका, अरे तुम इंतजार नहीं कर सकते थे, इधर एक्चुअली हम फंस गए थे, इतना प्रेशर, वो प्रेशर, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के वजह से हम ऐसा किया। इसका मतलब क्या ये है कि तुम H2O के साथ करके व्हाट इज दिस, बहुत गुस्सा हो जाएगा कौन, हीमोग्लोबिन। और देखो ये पूरा कहानी कहां चल रहा है, विद इन RBC। और ये RBC का बॉस कौन है, ये RBC का बॉस है हीमोग्लोबिन। ये RBC हीमोग्लोबिन तब क्या करेगा, ये जो देखो अभी ये है, ये अभी CO2 नहीं है, ये बाइकार्बोनेट बन गया है। और देखो ये अभी किसी का माँ भी हो गया है, इसका वैसा स्ट्रक्चर नहीं है अभी। ये क्या करेगा, बोलेगा तुम यहां से हटो, तुम मेरे सामने मत आओ, बोल के इस बाइकार्बोनेट आयन को ये प्लाज्मा में बाहर कर देगा, समझा। तो बाइकार्बोनेट को तो बाहर कर दिया, ठीक है, जल्दीबाजी में बाहर कर दिया बाइकार्बोनेट को, लेकिन ये H+ देखो बाहर कर दिया गुस्से में, ठीक है कोई बात नहीं। H+ एक छोटा सा बच्चा है, मासूम जैसा बच्चा है। वो किसका बच्चा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, समझा। उसको लेकिन वो अपना लेगा, समझा। हीमोग्लोबिन इस H+ के साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो H+ है, इस H+ के साथ हीमोग्लोबिन, अभी ये जो हीमोग्लोबिन का बाद बाकी पार्ट क्या होगा ना, H+ के साथ बाइंड करके हाइड्रोजिनेटेड हीमोग्लोबिन बनाएगा। दिस इज हाइड्रोजिनेटेड हीमोग्लोबिन, ओके। अभी देखो अगर बाइकार्बोनेट बाहर हो गया तो दिस इज वन नेगेटिव आयन, ओके। ये नेगेटिव आयन बाहर चला गया। अगर नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, ये RBC का अंदर में नेगेटिव आयन का कमी होगा, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा, और ये बाहर में इस प्लाज्मा में नेगेटिविटी बढ़ जाएगा। ऐसा हमारा बॉडी होने नहीं देंगे क्योंकि एक डिसबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, हीमोग्लोबिन उसका भी इस्तेमाल करेगा हमारा सिस्टम। ये इस प्लाज्मा से एक क्लोराइड आयन, मतलब एक बाइकार्बोनेट के लिए क्लोराइड आयन का अंदर ले लेगा, तो बैलेंस न्यूट्रल हो जाएगा, समझा ना। वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये जो क्लोराइड को अंदर ले लेते हैं हम लोग, इस घटना को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ओके, और हमबर्गर फिनोमिनन। ये जो सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड किसके साथ था, बोलो तो ये क्लोराइड किसके साथ था, ये क्लोराइड सोडियम के साथ था, NaCl के तौर पे था। तो देखो ये सोडियम को छोड़ के क्लोरीन चला गया और ये बाइकार्बोनेट को बाहर भेज दिया गया। अभी क्या करेगा, इन दोनों के साथ मुलाकात होगा और इन दोनों एक साथ में बिताएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार होगा। अभी सोडियम प्लस और HCO3 माइनस जुड़ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार होगा, ओके। ये प्लाज्मा लेवल पे रहेगा, समझा। ये प्रोसीड्यूर समझा, वो कहानी समझा, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पे और एक कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं कि देखो ये बाइकार्बोनेट को बाहर क्यों जाने पड़ेगा। देखो CO2 ये तो हर वक्त कंटिन्यूअसली बीइंग प्रोड्यूस्ड, हर वक्त प्रोडक्शन हो रहा है CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां CO2 का कन्वर्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन में। अगर बाइकार्बोनेट इसके अंदर ही रह जाए तो क्या होगा, तुम लोगों को रिएक्शन पता है। अगर ये प्रोडक्ट इधर ही रह जाए, बहुत कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका, तो क्या होगा ना, ये बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगा। ये प्रोडक्ट जितना बाहर चला जाएगा तब उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा, समझा, उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। ये रिएक्शन लेकिन रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये जो हर एक एसोसिएशन दिख रहा हो सब रिवर्सेबल है। हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 के साथ H2 का, क्योंकि ये शादी है,
समझे, ये सब रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब यू कैन डिवोर्स एंड टेक, ओके, दिस आर रिवर्सिबल रिलेशंस जैसा होता है नॉर्मली। तो देखो अगर बाइकार्बोनेट को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ये रिएक्शन एक टाइम में स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि CO2 कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कंटिन्यूअस कन्वर्शन चाहिए, नहीं तो ये नहीं आएगा। अगर पार्शियल प्रेशर इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तभी ये आ पाएंगे। इसके लिए बाइकार्बोनेट को बाहर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझा। और वो बाइकार्बोनेट बाहर चला गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम एक हुआ, क्या हुआ ना, एक नेगेटिविटी बढ़ते जा रहा है बाहर में और पॉजिटिविटी अंदर में, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए ये क्लोराइड शिफ्ट कर दिया। इसका और एक नाम है हमबर्गर फिनोमिना। ये वर्ड लिखो इधर, हमबर्गर फिनोमिना, ओके। तो अभी एक काम करते हैं कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन फिर इधर भी आएगा घूमते घूमते, इसको अभी इधर ले आओ। क्या आएगा बाबू, इधर देखो, इधर आएगा अभी तो HbO2 नहीं है, अभी इधर क्या आएगा, वहां से क्या आएगा, देखो वहां से जो आएगा HbCO2 आएगा, HbCO2 आएगा इसके अंदर, HbCO2 आएगा, ओके। CO2 के साथ जो जोड़ लिया था, ये प्लाज्मा से आएगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या आएगा, जो 7% मर गया था इधर वो लोग आएगा। तो जो 7% इधर डिजॉल्व था वो सिंपली यहां आके एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा। ये HbCO2 के बारे में सोचो, ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर एक साथ में अगर एल्वियोलाई में आ जाए तो क्या हो सकता है एल्वियोलाई का हालत, सॉरी हीमोग्लोबिन का हालत, उसको मार के ना पिटा के लोग, क्योंकि ये ससुराल है भाई, ये ऑक्सीजन का एरिया है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई रिलेशन माना नहीं जाएगा। अगर बेसी ज़्यादा तुम जोर दोगे तो क्या होगा, पिटाई खा जाओगे 2-4 तो, समझा। तो इधर आने के बाद हीमोग्लोबिन CO2 को बोलता है कि बाबू तुमको तो पता ही है सिचुएशन, तो एक काम करो यहाँ मेरे से अलग हो जाओ, नहीं तो ये एल्वियोलाई देख रहा हो, ऑक्सीजन देख रहा हो, ये हमको पूरा जेल में भर देगा यार। और आजकल जो आईन कानून है वो बहुत ही सख्त है, समझा। अगर उसको फॉलो किया जाए तो, नहीं फॉलो किया जाए तो क्या करेगा, तो इधर इन दोनों अलग हो जाएंगे, ओके। हीमोग्लोबिन हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। और इस CO2 को क्या बोल, CO2 को पता है, CO2 सिंपली टिश्यू रीजन में चला जाएगा। और एक चीज है देखो, HB, ये जो हाइड्रोजनेटेड हीमोग्लोबिन है, ओके, ये हाइड्रोजनेटेड हीमोग्लोबिन का क्या होगा, इसका फेट क्या किया जाएगा, एक ही चीज, इसको क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा कि ये तुम्हारा साथ में किसको ले आया, इस क्वेश्चन का भी सामना ये करना नहीं चाहते, यहां आके ये इसको भी अलग कर दिया, बोला भाई तुम भी हटो, समझा। तो अभी ये H+ का क्या किया जाएगा, ऐसा करके देखो, ये हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। ये हीमोग्लोबिन फ्री होने के बाद एकदम जेंटलमैन बन गया, फिर ऑक्सीजन के पास चला गया और ऑक्सीजन के साथ जोड़ के HbO2 बना दिया, समझा। और ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया। ये हीमोग्लोबिन फिर वहां नहीं, यहां जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जोड़ के HbO2 बना देगा। और ये जो H+, इसका भी क्या किया जाएगा, इसको अगर छोड़ देंगे तो ये तो बच्चा है, तो रोएगा ना, बहुत सारे शोर मचाएगा। इसका शोर सुन के इसका जो माँ है, इधर देखो, जो अभी किसके साथ, सोडियम के साथ है, समझा। अभी ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से वापस आएगा ये हाइड्रोजन को लेने के लिए। तो ये बाइकार्बोनेट आयन, अभी ये रिश्ता टूट जाएगा इन लोगों का, अभी सोडियम और बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। बाइकार्बोनेट फिर अंदर आएगा, ये जो H+ है, दिस H+ के साथ फिर से जुड़ेगा, जुड़ के फिर से CO2 और H2O बनाएगा, CO2 एंड H2O बनाएगा। और इसमें भी जो मदद करेगा वो भी एक ही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, समझा। और इधर जो CO2 तैयार होगा, अभी तो मामला मोटा मोटी बहुत दिन हो गया ना, और ये CO2 चुपचाप एल्वियोलाई में चला जाएगा। अच्छा, इधर भी एल्वियोलाई में ही जाएगा, ठीक है, इधर में भी एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई रीजन है तो एल्वियोलाई में चला जाएगा और एल्वियोलाई से हम उसको एक्सपायर करके बाहर कर देंगे। तो देखो अभी अगर बाइकार्बोनेट अंदर आ गया तो इसके अंदर जो क्लोराइड आयन था उसका कोई अभी काम नहीं है, ये क्लोराइड आयन का कोई काम नहीं है, ये क्लोराइड आयन फिर से
हम लोग बाहर कर देंगे। जैसा था सोडियम के साथ, क्लोराइड फिर से जुड़ जाएगा, जोड़ के क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। ओके, तो अगर वो क्लोराइड शिफ्ट है तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अगर उसको हम हमबर्गर फेनोमेना बोले थे तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स हमबर्गर फेनोमेनन। ओके, सो यहां क्या होते हैं, इस एल्वियोलर साइट में रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि ये है रिवर्स हमबर्गर फेनोमेनन। ओके, सो ये हमबर्गर फेनोमेनन रिवर्स है। ये तो ये क्वेश्चन आता है कि क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है, कहां होता है, टिश्यू रीजन में, समझा, और एल्वियोलर रीजन में रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है। तो अभी देखो क्या चीज हमारे पास क्लियर हुआ कि ये जो ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट, ये किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली मेन रीजन है ऑक्सीजन का क्या, उसका पार्शियल प्रेशर। उसके साथ साथ चलो हम लोग लिख लेते हैं एक जगह, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस किस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये हम लिखने जा रहे हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी ये डिपेंडेंट होगा। कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन हम कैसे मापते हैं, पार्शियल प्रेशर से। उसके साथ साथ इस H+ इसका कंसेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, समझा। और उसके साथ साथ ये डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर के ऊपर, जोश के ऊपर, समझा, कितना अट्रैक्शन, कितना टेम्परेचर है उधर, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, समझा। तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। इन सारा चीज के ऊपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट होगा, समझा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके।